Hello everyone, this is Samiksha Chaturvedi, your Unacademy CLAT educator. And in today's session, we'll be covering one of the important judgments of Supreme Court that dealt with abortion rights of unmarried women. So let us start with it. So the Honorable Justice Dr. D.Y. Chandrachud, Honorable Justice A.S. Bopanya and Honorable Justice J.B. Pardiwala, three judges bench was constituted wherein it was held in the case of X versus the Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi, that all women are entitled to safe and legal abortion irrespective of marital status in the term of 20 to 24 weeks. Apart from that, the court also ruled that the rape in when it comes to medical termination of pregnancy, the word rape also includes marital rape. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस कोड में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की गई थी। सबसे पहले कि एक विमेन की क्या मैरिड स्टेटस है, वेदर शी इज़ मैरिड और शी इज़ अनमैरिड, इट डज नॉट मैटर। हर एक विमेन का एक राइट है फॉर अ सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे बोला, हम लोग देखते हैं कि मैरिटल रेप इट इज ओनली कवर्ड इन वन ऑफ द सिचुएशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2, लेकिन अदरवाइज मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। लेकिन इस कोर्ट में इस जजमेंट ने कोर्ट ने ये रूल किया कि जब हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो वहां पे रेप इंक्लूड करता है आपका मैरिटल रेप एज वेल। ओके, सो लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस फर्स्ट। तो इसमें एक अनमैरिड वुमेन थी, शी वाज अराउंड 25 इयर्स एज एंड उन्होंने अपने कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बाद शी गॉट प्रेग्नेंट। नाउ शी वांटेड टू टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी, वो ये प्रेगनेंसी एंड करना चाहती थी बिकॉज उनके पार्टनर ने रिफ्यूज कर दिया था उनसे शादी करने के लिए एट द वेरी लास्ट स्टेज। She said that since because of the social stigma and harassment which is normally regarded to unmarried single women, especially unmarried single parents, especially if we talk about women, so she did not want to carry this pregnancy further. उसने फर्दर ये चीज सबमिट किया था कि शी डज नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उसके पास कोई भी अर्निंग्स का लाइवलीहुड का नहीं है। ऑल्सो एक मेंटल प्रिपरेशन जो चाहिए होता है एक किड को रेज करने के लिए, एक किड को चाइल्ड को नर्चर करने के लिए, शी ऑल्सो लैक्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। Further, she stated that the continuation of one wanted pregnancy would involve a risk of great immense injury to her mental health. Right, so these were the grounds under which she said that she wants to terminate the pregnancy. Now this case went to Delhi High Court first, लेकिन Delhi High Court ने इसको मना कर दिया। The Delhi High Court it ruled that section 3 clause 2b of medical termination pregnancy act and section 3bc of medical termination pregnancy rules 2003 which was amended in 2021, इसके अंदर कहीं पे भी जो भी कैटेगरीज मेंशन है उन कैटेगरीज में कहीं पे भी दिस हर राइट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी डज नॉट फॉल, right? Delhi High Court held that she does not have a right to a safe abortion because her case was clearly not covered in any of the categories that is mentioned under Rule 3b of medical termination of pregnancy rules, as the case of her being an unmarried woman whose pregnancy arose out of consensual relationship, right? So the court held that it was not covered under NTP rules. ओके, सो अगर हम लोग एक बार हिस्ट्री देखें कि क्या हिस्ट्री रही है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम लोग आईपीसी में सेक्शन 312 से सेक्शन 318 के अंडर मिस कैरेज देखते हैं, right? So therein if a woman or if a man they terminate the pregnancy, right, they cause a woman to miscarry, तो वहां पे आपका ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, राइट। लेट अस रीड सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी। A person who voluntarily causes a woman with a child to miscarry is liable for punishment attracting a jail up to 3 years or fine or both, unless it was done in good faith where the purpose was to save the life of the pregnant woman, right? इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर कोई भी पर्सन है जो किसी विमेन को चाइल्ड मिसकैरी कर रहा है, वॉलंटरली उसका चाइल्ड को मिसकैरी कर रहा है, तो वहां पे आप पनिशेबल हो, आप लायबल हो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years और फॉर फाइन और फॉर बोथ।
लेकिन अगर ये गुड फेथ में है, राइट, इफ द मिसकैरेज इज कॉट इन गुड फेथ, जहां पे आपका पर्पस क्या है, गुड फेथ किस लिए है, ताकि उस प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ बचाया जा सके, तो वहां पे आप लाइबल नहीं होंगे, राइट। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये नहीं लिखा है एनी थर्ड पर्सन, इसका मतलब अगर विमेन खुद से भी शी इज मिस कैरिंग हर चाइल्ड, तो वहां पे भी शी इज लाइबल फॉर पनिशमेंट। फर्दर सेक्शन 313 भी हम इधर देख लेते हैं, वेयर इन इट लेज डाउन दैट अ पर्सन हु कॉजेज द मिसकैरेज विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, राइट। तो पहले वाले में 312 में हम लोग देख सकते हैं कि कंसेंट है उस वुमेन की जिसका बच्चे को मिसकैरी किया जा रहा है। सेक्शन 313 क्या बोलता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन whether or not she is advanced stage of her pregnancy shall be liable with an imprisonment of jail term that extends to 10 years or fine or both, right। so ये आपका criminalize करता है miscarriage of child। लेकिन जब हम लोग का 1960s के अराउंड a lot of miscarriages, a lot of termination of pregnancy was happening which was going unaccounted for, राइट। तो इसके लिए एक कमिटी सेटअप की विच वॉज नोन एज शांतिलाल शाह कमिटी। इसके हेड थे डॉक्टर शांतिलाल शाह। इस कमिटी का बेसिक पर्पस था, द कमिटी वाज मेड टू लुक इनटू द मैटर ऑफ अबॉर्शन एंड डिसाइड इफ इंडिया नीडेड अ लॉ फॉर द सेम। और इन्हीं के रिपोर्ट के बाद, जब ये कमिटी ने रिपोर्ट दिया, तो इसी के बाद मेडिकल टर्मिनेशन बिल आया, लोकसभा में ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, एंड अल्टीमेटली इट बिकेम द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of April 1972, right। So it was included to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. Right now, it is included state of Jammu and Kashmir. Okay. Okay. So अभी recent amendment आपका हुआ था 2021 में, जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए थे। इसके पहले चेंजेस क्या थे, पहले हम लोग देखते हैं कि 2003 में कुछ नए रूल्स आए थे, जिसमें ये बोला गया था, उस टाइम पे एक्चुअली एक नई मेडिसिन आई थी, दिस वाज नोन एज मिसोप्रोस्टल, राइट। सो इससे क्या होता था, कोई भी प्रेगनेंसी होती थी, इट कैन बी टर्मिनेटेड अप टू 7 वीक्स इनटू इट, राइट। 7 वीक्स तक आप इस मेडिसिन का यूज करके आप अबॉर्शन कर सकते थे सेफली, राइट। लेकिन फिर 2021 का अमेंडमेंट आया और इसने परमिट किया, आफ्टर मेडिकल ओपिनियन अंडर स्ट्यूपुलेटेड सर्कमस्टांसेस अबॉर्शन कैन बी डन, राइट। और साथ ही साथ इन्होंने ये जो पीरियड इधर हम लोगों ने 7 वीक का पीरियड का टाइम देखा था, इसको इंक्रीज कर दिया 24 वीक्स फ्रॉम 20 वीक्स परमिटेड इन दिस 1971, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चेंजेस हुआ था 2021 में, वेयर इन पहली बात तो इन्होंने अबॉर्शन परमिट किया था, लेकिन मेडिकल ओपिनियन के बाद जो भी सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं उसके अंडर। दूसरा इसमें चेंजेस हुए थे दैट दे इंक्रीज द टेन्योर, द जेस्टेशन पीरियड, द अपर लिमिट अंडर विच द वुमेन कैन गेट मेडिकल टर्मिनेशन, ऑलराइट। ओके। So now what all are the requirements? MTP could now be accessed on the opinion of single registered medical practitioner up to 20 weeks of gestational period. From 20 weeks to 24 weeks, the opinion of 2 registered medical practitioner is required. So अब जो नए changes हुए हैं उसमें if the women is pregnant, तो 20 weeks तक आपको सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन चाहिए होती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक्स से 24 वीक्स तक है, देन देयर आर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड, राइट। प्रीवियस वर्जन में क्या होता था, द ओपिनियन ऑफ 1 रजिस्टर्ड डॉक्टर वाज रिक्वायर्ड टू असेस मेडिकल अबॉर्शन अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाइल 2 डॉक्टर्स वर रिक्वायर्ड अप टू 20 वीक्स। तो ये आपका यहाँ पे टेन्योर बढ़ा दिया गया, alright। Besides, if the pregnancy has to be terminated beyond the 24 gestational age, it could only be done on the grounds of fetal abnormalities if a member of if a 4-member medical board was set up, as each state was supposed to set up and they gave permission to it, right। तो अब इसका क्या मतलब है, पहले क्या होता था, अगर प्रेगनेंसी, पहले नहीं सॉरी, इसके अभी रिसेंटली अगर आपको टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी आफ्टर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड, तो क्या ग्राउंड्स है, एबनॉर्मलिटीज, द फ्यूटल एबनॉर्मलिटीज, और वहां पे आपको मेडिकल बोर्ड 4 मेंबर होने चाहिए उस मेडिकल बोर्ड के, जो आपको परमिशन देंगे, right। The law notwithstanding any of the above conditions also provide that there is an immediate necessary to save the life of pregnant women. So एक ग्राउंड आपका हो गया fetal abnormalities और दूसरा ग्राउंड हो गया आपका to save the life of pregnant women.
अगर 24 वीक के जेस्टेशनल पीरियड के बाद कोई भी विमेन आती है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वहां पे दो ग्राउंड्स देखा जाएगा, पहले फ्यूटल ऑबनॉर्मलिटी और दूसरा अगर आपको प्रेग्नेंट विमेन की लाइफ बचानी है, right? So abortion can be carried out at any time by single registered medical practitioner in case of if the life of a woman is in danger, right? So under 2021 Act, the unmarried woman can also assess abortion under the above mentioned conditions because it does not mention the requirement of spousal consent. तो आप इस एक्ट को देखोगे उसमें कहीं पे भी आपके स्पाउस की कंसेंट लेने की जरूरत है या नहीं है ये नहीं मेंशन्ड है, राइट? तो इसका मतलब अगर अनमैरिड वुमेन भी है तो देन आल्सो शी कैन गेट द अबॉर्शन डन इफ अ वुमन इज माइनर, हाउएवर द कंसेंट ऑफ गार्जियन इज रिक्वायर्ड, राइट? सो लेट अस सी कि इन्होंने सेक्शन 3B ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में कैटेगरीज दी है 7 वुमेन की हु आर एलिजिबल फॉर सीकिंग द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट? तो सबसे पहले देखो इसमें कौन है, आपके सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और इंसेस्ट। जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स होते हैं इफ दे गेट प्रेग्नेंट तो उनको इसके अंडर अबॉर्शन इज अलाउड। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देर इज सम माइनर, तो माइनर के केसेस में भी द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड। चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ, विमेन इस समय प्रेग्नेंट है, राइट? एंड उसी समय या तो वो विडो हो जाती है, दैट इज द हस्बैंड डाइज, या तो फिर उसका डाइवोर्स हो जाता है। सो इन दोनों सिनेरियोज में भी द अबॉर्शन कैन बी अलाउड। वुमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट? अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन है, कोई मेंटली इल वुमेन है, राइट? The fetal just a second. The fetal malformation that has a substantial risk of being incompatible with life, or if the child is born, it may occur for such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped, right? तो एक और ग्राउंड इन्होंने क्या मेंशन किया है कि अगर फीटस में क्या है, मालफॉर्मेशन है, दैट इज अगर ये बच्चा कल को पैदा होता है तो उसके या तो फिजिकल एबनॉर्मेलिटी होगी या तो मेंटल एबनॉर्मेलिटी होगी, किसी ना किसी तरह की हैंडीकैप होगी, राइट? So women with pregnancy in humanitarian settings or disasters or emergencies can be declared by the government. तो this can be declared, right? जहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट को नेसेसरी लगता है, गवर्नमेंट कैन अकॉर्डिंगली चेंज। आई होप हम लोग को ये समझ में आया है कि कौन से 7 कैटेगरीज दिए हुए हैं जो एलिजिबल है मेडिकल टर्मिनेशन के लिए, ओके? ओके, सो इस कोर्ट ने क्या जजमेंट में दिया है, राइट? सो सबसे पहले इन्होंने बात की बैरियर्स टू एसेसिंग सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। सी इंडिया में देर आर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जब हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, सोशल स्टिग्मा बहुत अटैच्ड होता है रिगार्डिंग टू अनमैरिड वुमेन एंड द प्रेगनेंसीज, फेलियर टू ensure confidential care, continue to prevent full access to safe and legal abortion, pushing women to avail of clandestine and unsafe abortion. So इस तरह के बहुत सारे hurdles हैं जो इंडिया में आज भी देखने को मिलता है। अनमैरिड वुमेन आपका एक जेंडर स्टीरियोटाइप में आता है ना, अबाउट वुमेन सेक्सुअल ऑटोनॉमी आउटसाइड मैरिज, राइट? सो इफ अ वुमेन इज अनमैरिड शी हैज टू गो थ्रू अ लॉट, शी हैज टू सफर अ सोशल स्टिग्मा. Such barriers may contribute to a delay in accessing abortion services or a complete denial of such services, consequentially negating the women's right to reproductive autonomy. So यहाँ पे कोर्ट का क्या कहना है कि because of these unavailability of these features, एट टाइम्स विमेन कभी कभी अबॉर्शन सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाती हैं, और अवेल करती भी हैं तो उसमें बहुत लंबा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से अ वुमन हु वांट्स टू गेट द अबॉर्शन शी कैन नॉट, right? She cannot. So this is the first point that the court discussed, that because of these things, because of the unavailability or the number of hurdles that are given, women cannot get easy abortion in India, right? Okay. Apart from that, the second thing that they discussed was regarding registered medical practitioner.
तो अब अगर हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देखें, तो जब भी हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात करते हैं, तो वी नो कि इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 312 टू 318 ऑफ आईपीसी, क्योंकि 312 से 318 में दिया हुआ है कि मिस कैरी करना, किसी भी वुमेन को मिस कैरी करना, इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, राइट, इट इज पनिशेबल एक्ट। लेकिन एमटीपी एक्ट में वही चीजें अलाउड है। सो एमटीपी एक्ट एक तरह का एक्सेप्शन है आईपीसी के इन सेक्शंस को लेके, राइट। तो सेक्शन 3(1) of MTP, it lays down that the termination of pregnancy is criminal offense under IPC unless it fulfills the condition laid down in MTP Act, including who can terminate a pregnancy, the place where termination can take place, and the specific conditions in accordance in which such termination is permissible, right. So यहाँ पे हमारा सेक्शन 3(1) यही बोल रहा है कि नॉर्मली तो ये एक ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, लेकिन एमटीपी एक्ट के अंदर जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे टर्मिनेशन होगा, कौन टर्मिनेट कर सकता है अपनी प्रेगनेंसी, क्या क्या कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, इफ ऑल दोज कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तब अ वुमन कैन गेट अ मेडिकल टर्मिनेशन, राइट। सेक्शन 5(2) क्या डालता है, आपके बारे में बात करता है कि when termination of pregnancy is carried out by a person who is not a registered medical practitioner, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो टर्मिनेट कर रहा है प्रेगनेंसी की, तो वहां पे सेक्शन 5(2) में आपकी पेनाल्टीज हैं। सिमिलरली सेक्शन 5(3) प्रोवाइड करता है पेनाल्टीज की इफ इट इज कैरीड आउट इन अ प्लेस अदर देन दैट मेंशन्ड इन सेक्शन 4। सो सेक्शन 4 आपकी एक प्रॉपर लिस्ट देता है कि कहाँ कहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन। अगर उन प्लेसेस के अलावा कहीं और यहाँ पे टर्मिनेशन हो रही है, देन अगेन सेक्शन 5(3) प्रोवाइड्स फॉर द पेनाल्टीज। Registered medical practitioners and women seeking termination of pregnancy are exempted from any legal action under the provision of IPC mentioned above only when these conditions are fulfilled. Excuse me. सो यहाँ पे इनका ये कहना है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और विमेन सिर्फ तभी एग्जेम्प्टेड हैं इन पेनाल्टीज से अगर वो जो कंडीशंस दी हुई हैं एमटीपी एक्ट में उनको फुलफिल करती हैं, राइट। सो although the actions of RMPs done in the good faith under MTP Act are protected under Section 8, the specter of criminalization casts a chilling effect on them. So what happens is कि at times अगर registered medical practitioner good faith में आके terminate कर भी देता है pregnancy को, उसके बावजूद कहीं कहीं पे आप देखोगे कहीं पे भी अगर हम लोग क्रिमिनलाइजेशन किसी एक्ट का देखें, तो वो एक्ट हमेशा हमेशा ही आपके मन में एक डर बना के रहता है, right. So the specter of criminalization casts a chilling effect on them, and they fear that they will be prosecuted under penal provisions, often leads to unnecessary delays, right. So registered medical practitioner ये इंश्योर करने के लिए कि सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, वो बहुत आराम से काम करते हैं और वो बहुत ही प्रिकॉशंस लेके काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अननेसेसरी का डिले होता है, right. It is common yet lamentable practices of registered medical practitioners to insist on compliance with extra legal conditions such as conditions from the women's family, consent from the women's family, documentary proof और judicial authorization. So वो क्या करते हैं, वो दूसरी तरह की डिमांड करने लगते हैं, right. जैसे कि वो फैमिली से कंसेंट मांगने लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगेंगे, या बोलेंगे आप जुडिशियल ऑथराइजेशन लेके आओ कि हम ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। सो इस तरह की कंडीशन से क्या होता है, डिले होता रहता है हर तरह का आपके अबॉर्शन के लिए, आपके मेडिकल टर्मिनेशन के लिए। If a woman fails to comply with these additional requirements, remember these requirements they are not given under medical termination of pregnancy act, ये इस एक्ट में नहीं दिया हुआ है। ये क्या होता है, ये डॉक्टर खुद से उनसे बोलते हैं कि आप ये इन तरह के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो। Because of this, again, it declines to provide their services in conducting legal abortion. ठीक है? So due to the widespread misconception that termination of pregnancy of unmarried women is illegal, a woman and her partner may resort to availing
of abortion by unlicensed medical practitioners in facilities not adequately equipped for the medical procedures, leading to highlighted risk of complications and maternal mortality. सो व्हाट इज द कोर्ट ट्राइंग टू से हियर कि क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत ही कॉमन नोशन है ये कि एक अनमैरिड वुमेन शी कैन नॉट गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी वुमेन है इंडिया में वो क्या करती हैं, वो अनलाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाती हैं और वो उनकी फैसिलिटीज यूज करती हैं जिनके पास प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं होंगे, जो कायदे से जो ढंग से उनको शायद अबॉर्ट ना करवा पाए चाइल्ड, जिसकी वजह से अगेन कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं वुमेन के साथ एंड मटर्नल मोर्टेलिटी भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, राइट। Okay, next point that the court discussed was transcending the institution of marriage as a source of right. So in India, again, अभी हम लोगों ने starting में ही discuss किया था that unmarried women getting pregnant, it forms a social stigma, राइट। सो बहुत सारे हम लोग देखते हैं लॉज जो भी इंडिया में हैं, ये जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ये मैरिड लोगों को प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो व्हाइल मच ऑफ द लॉ बेनिफिट्स वर एंड इंडीड आर रूटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, द लॉ इन द मॉडर्न टाइम्स इज शेडिंग अ नोशन is shedding the notion that a marriage is precondition to the rights of individual. So अब जो modern times आए हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि marriage as a concept it is shedding, right? Changing social mores must be borne in mind while interpreting the provisions of an enactment to further its object and purpose. तो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जब भी हम लोग कोई भी लॉ है उसका ऑब्जेक्ट या पर्पस देखते हैं तो इन चेंजिंग सोशल सिनेरियोज को हमको ध्यान में रखना होगा, राइट। सो जैसे हम लोग एक केस देखते हैं एस खुशबू वर्सेस कन्यामल, इसमें 3 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बोला दैट यस they acknowledge that live-in relationships are there and premarital sex should be associated with the lens of criminality, right, should not be associated. तो इनका क्या कहना था कि live-in relationship it is very much legal, right, they acknowledge this concept of live-in relationship और साथ ही साथ उन्होंने क्या acknowledge किया that premarital sex it is also it should not be seen as criminal act, right. Similarly, in Deepak Singh versus Central Administrative Services case, यहाँ पे भी कोर्ट ने हेल्ड किया कि अब सोशल रियलिटीज हमें क्या दिखा रही हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल मैनिफेस्टेशंस हैं इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, राइट। सो द कोर्ट हेल्ड दैट सोशल रियलिटी इंडिकेट्स द नीड टू लीगली रिकॉग्नाइज नॉन ट्रेडिशनल मैनिफेस्टेशन ऑफ familial relationship. Such legal recognition is necessary to enable individuals in a non-traditional family structures to avail the benefits under beneficial legislation including medical termination of pregnancy act. So कोर्ट ने इस केस को रेफर करते हुए बोला कि अब जो चेंजिंग सिनेरियोज हैं, जो भी नॉन ट्रेडिशनल फैमिली के रिलेशंस नए नए अलग निकल के आ रहे हैं, हम लोग को अब ऐसे लॉज देखने होंगे, अब ऐसा इंटरप्रिटेशन करना होगा जो हर एक जो इन तरह के भी नॉन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स को भी सपोर्ट करे, उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड करे, इंक्लूडिंग दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. Apart from that, the court went on to discuss the equal status of married, unmarried और single women, right? तो कोर्ट ने इसमें बहुत सारे एक्ट्स देखे such as maternity benefit act. मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट में आप देखते हो कि ये जो मैटर्निटी बेनिफिट जो मिलते हैं वो हर एक वुमेन को इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग अनमैरिड वुमेन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज है वो यूज है एवरी वुमेन. दिस एक्ट डज नॉट राइट डाउन मैरिड वुमेन. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एवरी वुमेन. तो एवरी वुमेन का मतलब हुआ कि हर एक वुमेन के पास मैटर्निटी बेनिफिट का राइट है. हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी हम लोग देखते हैं कि पहले जो कोपार्सनरी राइट्स अभी रिसेंट अमेंडमेंट के बाद आए हैं वो कोपार्सनरी राइट्स हर एक डॉटर को मिलेंगे irrespective of her marital status. So whether a woman is married or unmarried, it does not matter. A woman will also be considered a unmarried woman or a married woman, both will be considered a co-partner, right? Section 8 of Hindu adoption and maintenance again यहाँ पे एक female हिंदू को भी ये right दिया गया है that she can adopt regardless of her marital status. So whether she is married or unmarried, again it does not matter. Similarly, Section 7 and 8 of Guardians and Wards Act of 1819,
It also allows a person to apply for an order of guardianship without making any distinction between men or women, married or unmarried. So again, you can see here that there's no difference made between married and unmarried women. So इन एक्ट्स को देखने के बाद कोर्ट ने ये एम्फसाइज डाला कि अनमैरिड वुमेन हैव द सेम राइट्स एज मैरिड वुमेन इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन, सक्सेशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स। इन सारे ही लॉ को देखने के बाद कोर्ट ने ये बोला कि हमें एमटीपी एक्ट को और एमटीपी रूल्स को भी इसी तरह से देखना होगा जहां पे एक जेंडर इक्वल सोसाइटी बनाई जाए, राइट, एंड इट शुड नॉट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैरिड और अनमैरिड वुमेन। दैट इज यहाँ पे मैरिड वुमेन भी अबॉर्शन ले सकती हैं इस एक्ट के अंदर और अनमैरिड वुमेन भी अबॉर्शन ले सकती हैं। Now, the next very important concept that the court discussed was regarding the injury to mental health, right? Okay, if a woman is allowed to carry out to continue with the pregnancy, हमारा section 32 of this act, it lays down that that the pregnancy may be terminated by a registered medical practitioner if the continuance of the pregnancy would involve a risk to life of a pregnant woman or grave injury to her physical or mental health, right? So like for in this example, in this case itself, in this case that is in front of the Supreme Court, इसमें जो woman थी, she was unmarried and unemployed, right? She was not mentally prepared to have a child. अगर उसके साथ उसको इस चाइल्ड को हम लोग कंटिन्यू करने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं तो वहाँ पे एक मेंटल प्रेशर आ जाता है उस पर, राइट, राइट, एक मेंटल प्रेशर आ जाता है उसमें विच वुड हैव नॉट बीन हेल्दियर फॉर द वुमन एज वेल एज फॉर द किड, राइट। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें आपके सेक्शन 3 क्लॉज 2 का, तो उधर ये चीज मेंशन हुआ है कि अगर कोई भी विमेन है, if a woman is alleged to be pregnant by rape, the anguish caused by the pregnancy shall presume to continue a grave injury to the mental health of a pregnant woman। तो यहाँ पे इन्होंने एक circumstance mention किया है कि कैसे injury to mental health हो सकती है, okay? Apart from that, the right to reproductive autonomy, it should be a right, a reproductive right is limited to a woman, right? It should not be restricted to women to have or not have a child। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं restrict होना चाहिए कि उसको kid child रखना है या नहीं रखना है। It also includes the constellation of freedoms and entitles that a woman to decide freely on all matters regarding to her sexual and reproductive health, right? अब आपके पास reproductive rights में आपका क्या क्या आएगा? Right to, आपके पास ये राइट्स तो है ही कि चाइल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक वुमेन के पास ये राइट्स तो है ही। उसके अलावा और क्या राइट है? राइट टू एक्सेस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अगेन अंडर रिप्रोडक्टिव राइट्स इटसेल्फ। द राइट टू डिसाइड वेदर एंड व्हाट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू यूज, the right to choose whether or when to have children, the right to choose the number of children and right to access safe and legal abortion and the right to reproductive health care। सो कोर्ट ने डिटरमाइन किया ये जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है ये सिर्फ इस पे नहीं आती है कि आपके पास चिल्ड्रन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इट इज अ much wider term than we can relate to, right? यहाँ पे आपका एक्सेस टू एजुकेशन की बात हो गई, इंफॉर्मेशन की बात हो गई, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो गई, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बात हो गई, लीगल अबॉर्शन एंड सेफ अबॉर्शन एंड देन राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, दीज ऑल आर इंक्लूडिंग इन दीज, right? And this autonomy has to be free from coercion or violence, right? Okay, the consequence of unwanted pregnancy on women's body as well as mind cannot be understated. The fetus relies on pregnant women bodies for sustenance and nourishment until it is born. The biological process of pregnancy transforms the women's body to permit this. The women may experience swelling, body ache, contraction, morning sickness, restriction, mobility, to name a few of host of side effects.
Further complications may arise which pose a rise to the life of risk to the right of to the life of women. A mere description of side effect of pregnancy cannot possibly do the justice of visceral image of forcing a woman to continue with an unwanted pregnancy. Therefore, the decision to carry the pregnancy to its full or terminate it is firmly rooted in the right to bodily autonomy and decisional autonomy of pregnant women. So the court here wants to emphasize on the fact कि सिर्फ just giving a child is not a woman giving a birth. It includes several other things, right? एक child ये सर्वाइव करने के लिए विमेन की बॉडी के ऊपर सस्टेन करता है और नरिशमेंट लेता है एंड इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. सो एक विमेन इन साइड इफेक्ट्स को चाहती है या नहीं चाहती है, अगेन ये पूरा का पूरा राइट होना चाहिए उस विमेन का, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट द कोर्ट डिस्कस द राइट टू डिग्निटी. एक विमेन को उसके बॉडी से अगर हम लोग ऑटोनॉमी हटा लेंगे तो ये डिग्निटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, right? The right to choose for oneself, be it as significant as choosing the course of one's life or mundane as one-to-one day life activity, it all forms part of the dignity, right? Okay. Next was purposive interpretation of Rule 3B of MTP rules to include unmarried women, single women or women without partner under its ambit. So हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग सेक्शन 3B पढ़ रहे थे तो उधर हम लोगों ने देखा change of marital status during an ongoing pregnancy, right? Change of marital status. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि it means widowhood or divorcee, right? लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस कोर्ट ने क्या बोला, इट शुड बी गिवन अ पर्पसिव रादर देन अ रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन. हमें इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, हमको एक इसको पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देना चाहिए, राइट. एंड therefore it was interpreted that it benefits extended not only to married women but it also extends to single and married women both, right? So if rule 3BC was to be interpreted such that its benefit extended only to married women, it would perpetuate the stereotype and socially held notion that only married women indulge in sexual intercourse and that consequently the benefits in the law ought to extend only to them. So again this would have been wrong, राइट क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग ये सोच के चलें कि सिर्फ मैरिड वुमेन ही जो है सेक्सुअली इंटरकोर्स करती हैं, सो अगेन यहाँ पे आप एक बेनिफिट को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे जिसका पर्पस क्या होना चाहिए, हर एक वुमेन को लीगल अबॉर्शन, सेफ और लीगल अबॉर्शन देना चाहिए. सो दिस आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैरिड एंड सिंगल वुमेन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल. ओके. The last and the very important point that the court discussed here was sexual assault or rape under medical termination of pregnancy law includes marital rape, right? तो जब हम लोग इंडियन पीनल कोड देखते हैं तो उसका सेक्शन 375 में कहीं पे भी मैरिटल रेप के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई विमेन है हु इज अंडर 15 years of age और अगर तब हस्बैंड उस 15 साल से कम की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन ओनली इट विल अमाउंट टू मैरिटल रेप. लेकिन अगर द विमेन इज मोर देन 15 years देन इट विल नॉट बी मैरिटल रेप, राइट. तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला that the meaning of rape must therefore be understood as including marital rape under section 3BA, राइट. जब हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था सर्वाइवर्स ऑफ रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट, तो उनको भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के राइट्स मिलते हैं. कोर्ट ने ये बोला कि इसके अंदर हम लोग मैरिटल रेप को भी लेके आएंगे, राइट. क्यों? ताकि जो विमेन है, जो बेचारी जो जिसको कंपेल किया जाता टू गिव बर्थ एंड टू रेज अ चाइल्ड विद अ पार्टनर हु इन्फ्लिक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल हार्म अपॉन हर, उससे हम लोग उसको बचा सकते हैं, राइट. Okay, so in order to avail the benefit of section 3BA, the women need not necessarily seek recourse to formal legal proceedings to prove the factum of sexual assault, rape or incest. तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जरूरी नहीं है कि women prove करे कि उसके साथ sexual assault हुआ था. Neither explanation 2 of section 3(2) or rule 3BA require that the offender be convicted under IPC or any other criminal law. So कहीं पे भी आप MTP एक्ट में देखोगे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स या कोई भी तरह का कन्विक्शन या फिर FIR भी रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता है,
राइट, एफआईआर रजिस्टर करना भी जरूरी नहीं होता है। इसका मतलब मैरिटल रेप प्रूव करने की भी हमें जरूरत नहीं है। All this does not need to be proved, and therefore the sexual assault or rape under this medical termination of pregnancy law includes marital rape. आई होप आपको ये अबॉर्शन ऑफ अनमैरिड वुमेन का केस क्लियर होगा, राइट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जजमेंट एंड वेरी ब्यूटिफुली रिटन, एंड आई होप you get it. Do subscribe to the channel, and thank you so much for watching.